Namaskar. I would seek permission from Honorable President to start the session. Honorable President of India, respected Secretary, Department of Sports, Director General, Sports Authority of India, senior dignitaries, and distinguished sportsperson, a very warm greetings to all. Today we are gathered here to have an interaction of sportsperson with Honorable President under our new initiative, the President with the People. To begin with, I would request Additional Secretary to the President to give a brief introduction about the program. Honorable President, distinguished colleagues and dignitaries. A very warm afternoon and warm welcome to Rashtrapati Bhavan. I'm honored to stand before you today as we embark on a remarkable initiative, the President with the People. This is to recognize and celebrate the outstanding achievements of individuals who have brought immense pride to our nation and have helped in nation building. Today, we gather to inaugurate the program by welcoming a group of extraordinary achievers, our sport heroes and heroines, who have glorified India on the international stage. Our sportspersons, through their dedication, perseverance, and unparalleled skill, have become ambassadors of India's prowess on the global stage. Today, as we welcome them to meet with the Honorable President, we celebrate not only their individual accomplishments, but also the collective triumph of the spirit of sportsmanship that unites our great nation. In the coming months, this program will extend to various fields, recognizing achievers from diverse backgrounds who have contributed significantly to the fabric of our society. It's a celebration of excellence, diversity, and collective strength that defines India. Without further ado, let us commence this inaugural event by extending a warm welcome to our outstanding sportspersons. May this be the first of many such gatherings that strengthen the bond between the highest office in our land and the incredible individuals who contribute to the tapestry of our nation's success. Thank you. Jai Hind. अब मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगी कि एक-एक करके अपना परिचय दें. My name is Pranav Surma. I am 29 years old from Faridabad, Haryana. Recently, I made my debut in Asian Para Games and I have won gold medal in Para Athletics in club throw event and also made the Asian Games record. Good afternoon, ma'am. I am Manu Bhakar, shooting sport, and I was 7th in the Olympic Games at Tokyo 2020. I have also qualified for the Paris 2024 Olympic Games, and I'm already preparing for the Olympic Games. Pleased to meet you. जय माता दी मैम, मेरा नाम शीतल है और मैं एक पैरा आर्चर हूँ. श्री माता वैष्णो देवी शाइन वर्ल्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हूँ. मेरे कोच अभिलाषा चौधरी. मैं 4th पैरा एशियन गेम्स में 2 गोल्ड 1 सिल्वर जीत के आई हूँ और अभी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हूँ. थैंक यू. और वर्ल्ड नंबर 1 है मैम, अभी रैंकिंग नंबर 1. राधे राधे मैम, मेरा नाम ज्ञानेश्वरी यादव है और मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ. मैं 20 साल की हूँ और मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ. जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल है और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड है जूनियर और सीनियर में, साथ में बेस्ट लिफ्टर के साथ. मैम अभी नेशनल्स है मेरे दिसंबर में और आगे बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है. एशियन चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो उसकी तैयारी चल रही है. नमस्ते मैम, मेरा नाम अदिति गोपीचंद स्वामी है. मैं 17 साल की हूँ और मैं सतारा महाराष्ट्र से हूँ और मैं आर्चरी स्पोर्ट करती हूँ और मुझे अभी करंटली यूथ वर्ल्ड चैम्पियन और सीनियर वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल है और मेरे को एशियन गेम्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल है. थैंक यू. जी मैम, आगे के लिए क्या अभी मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही हूँ. नमस्ते मैम, मेरा नाम ओजस देवतल है और मैं 21 इयर्स ओल्ड हूँ और मेरा स्पोर्ट्स आर्चरी है. अभी हाल ही में जो मेरे अचीवमेंट्स है वो वर्ल्ड चैम्पियन हूँ मैं करंटली और एशियन गेम्स में 3 गोल्ड मेडल्स लेके आया एंड करंटली आई एम वर्ल्ड रैंकिंग 4th. नमस्ते मैम, मेरा नाम मार्क्यो तरियाव है और मैं एक वेट लिफ्टर हूँ और मैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से हूँ. अभी मैंने रिसेंटली कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है. आगे मैम
नेशनल और इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ और भी आ रहा है, उसमें तैयारी करना है। तैयारी चल। नमस्ते मैम, मेरा नाम यामिनी मौर्य है। मैं 25 साल की हूँ और मैं जूडो की खिलाड़ी हूँ। मैंने अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जूनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल है। थैंक यू। तैयारियाँ क्या चल रही हैं? मैम मैं ओलंपिक में इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, मेडल लेना चाहती हूँ। नमस्ते मैम, मेरा नाम अंतिम पगाड़ा है। मेरी 19 साल एज है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरा एशियन गेम और सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। तैयारियाँ चल रही है? हाँ, मेरा 2024 ओलंपिक के लिए कोटा मिला। गुड आफ्टरनून मैम, मैं सिफ्थ कौर समरा और मैं 22 साल की हूँ। मैं फरीदकोट पंजाब की रहने वाली हूँ और शूटिंग में मैंने रिसेंटली एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है विद अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसके साथ साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेरे 2 गोल्ड हैं एंड ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हूँ मैं और आगे श्योर ओलंपिक्स के लिए अच्छा। वेरी गुड, जय हिंद मैम, मेरा नाम ईश्वर प्रताप सिंह तोमर है। मेरी एज 22 साल है और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के छोटे से गांव रतनपुर का रहने वाला हूं। और मेरा अचीवमेंट्स में मैंने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और 19th एशियन गेम्स में मैंने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। और अभी हाल ही में हुए हमारे एशियन चैम्पियनशिप में मैंने एशियन चैम्पियन का टाइटल जीता है और अभी नेक्स्ट 2024 ओलंपिक्स की तैयारी चल रही है। थैंक यू। वेरी नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम अमन है, हरियाणा से रेसलर। अब 2022 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ओलंपिक की तैयारी चल रही है। वेरी नमस्ते मैम, मेरा नाम सुमन थोगदान है। मैं इम्फाल मणिपुर से हूँ और मैं 24 साल का हूँ और मैं हॉकी प्लेयर हूँ और मैंने जूनियर एशिया कप में हम लोग ब्रॉन्ज लेकर आए हमारी टीम और मैं सीनियर एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में सिल्वर मेडल लेकर आया हूँ। थैंक यू। नमस्ते मैम, मेरा नाम रशनप्रीत है और मैं पंजाब से हूँ और मैं इंडियन वुमेन हॉकी टीम की गोलकीपर हूँ और रिसेंटली हमने नेशंस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया। Namaskaram ma'am, I am Bhagavati Bhavani Yadav and I am 24 years old. I am from Vijayawada, Andhra Pradesh and I have represented India in World University Games and I won bronze medal. Long jump is my event. Next, I was preparing to qualify for the Paris Olympics in my event. Thank you. नमस्कार मैम, मेरा नाम नरेंद्र बेरवाल है और मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूँ, हिसार हरियाणा से हूँ और मैं अभी एशियन गेम में मेडल लेके आया हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट अभी ओलंपिक क्वालिफाई करना और मेडल लेके आना है। नमस्ते मैम, मेरा नाम परवीन हुड्डा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं बॉक्सर हूँ। अभी मैंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, तो अभी मेरी ओलंपिक के लिए तैयारी चल रही है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम नारायण ठाकुर है और मैं 33 साल का हूँ और मैंने अभी एशियन गेम्स में 100 मीटर 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मैं 6 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ और अभी 11 से 13 तारीख तक खेरो पैरा गेम्स हो रहे हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. I am Nitesh Kumar. I am 28 years old. I am from Charki Dadri district, Haryana. I have recently won 1 gold, 1 silver, and 1 bronze at the Asian Para Games 23. Our qualification for Paris Paralympics are still in the way, and I'll positively qualify for the games. Thank you. नमस्ते मैम, मेरा नाम सिमरन शर्मा है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं उत्तर प्रदेश मोदी नगर से हूँ और मैंने अभी एशियन पैरा गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और मैं अपने देश के लिए पहला रेस का मेडल जीतना चाहती हूँ पैरालंपिक्स गेम्स में। जय हिंद मैम, मेरा नाम कृष्ण नागर है। मैं 24 इयर्स का हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैम मैं टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और साथ ही साथ खेल रत्न अवार्डी भी। और अभी रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें मेरा सिंगल और ब्रॉन्ज मेडल था और मैम होप अभी नेक्स्ट ईयर जो पैरालंपिक्स है उसमें हम बेस्ट दें और मैं दोबारा से गोल्ड मेडल जीतूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ मैम, मैं प्रमोद भगत हूँ। मैं 34 ईयर का हूँ और मैं 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हूँ और 2 टाइम एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और रिसेंटली मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि ओलंपिक में क्वालिफाई करूँ और मैं ओडिशा से हूँ, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू मैम। Good evening, ma'am. I'm Yashwardhan Singh from Gurgaon, Haryana.
I am 17 years old and I am a two-time Asian champion in boxing. And I have recently got a silver medal in Youth Boxing Championship, Asian. Thank you, ma'am. नमस्ते मैम, मेरा नाम साक्षी पुनिया है और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मैं कबड्डी की खिलाड़ी हूँ और रिसेंटली हमारी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। नमस्ते मैम, मैं सुकांत इंदुकांत कदम हूँ। मैं सांगली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली मैंने एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और मैं करंटली वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। थैंक यू। जय हिंद मैम, मेरा नाम तरुण ढिल्लो है। मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मेरी उम्र 29 साल है और मैम मैं 10 साल से इंटरनेशनल प्रोफेशनल बैडमिंटन खेल रहा हूँ, जिसमें मुझे 2 बार विश्व विजेता और 2 बार एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का मौका मिला। थैंक यू। Namaste ma'am, I'm Dr. Aarti Kasturiraj. I'm from Chennai, Tamil Nadu. I'm a roller speed skater and in the recently held Asian Games, we won the bronze medal, which was the first medal for speed skating, and I'm preparing for the European Championship next year. नमस्कार मैम, मेरा नाम तेजस्विन शंकर है। मैं 24 साल का हूँ और मैं आपका पड़ोसी हूँ यहीं दिल्ली से। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, और वहाँ मैं मेडल भी हासिल करके लेके आया हूँ, तो उस बात की खुशी। सबका परिचय हो गया? ठीक है। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उपस्थित सभी खिलाड़ी, उनके कोचेस, माननीय अधिकारीगण, ये वास्तव में हमारे विभाग और हमारे खिलाड़ियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर इनसे मुलाकात की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को गौरवान्वित किया है। आपने अभी सभी के विभिन्न रिकॉर्ड सुने, ओलंपिक्स की तैयारी सुनी और आपने जो उनको कहा उससे मुझे विश्वास है कि उन्हें अत्यंत प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यहाँ आज विभिन्न खेलों से जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, कबड्डी, जूडो, रोलर स्केटिंग, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग तथा बैडमिंटन, तीरंदाजी और एथलेटिक्स के पैरा एथलीट को कुल मिलाकर 28 एथलीट मौजूद हैं। उनमें से कुछ विश्व चैंपियन, एशियाई खेलों के पदक विजेता, पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता और विश्वविद्यालय खेलों में पदक विजेता हैं। पैरा बैडमिंटन के खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री प्रमोद भगत भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे पास एथलेटिक्स से तेजस्विन शंकर है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों में 2 अलग अलग स्पर्धाओं में पदक हासिल किए हैं। आदिति गोपीचंद 17 साल की उम्र में कंपाउंड तीरंदाजी में पहले से विश्व चैंपियन है, यहाँ मौजूद है। इस समूह में कई एथलीट हैं जिन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। आज यहाँ मौजूद सभी एथलीटों को सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित किया गया है। कुछ युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप स्कीम के लाभार्थी हैं, जबकि अन्य खेलो इंडिया योजना के लाभार्थी हैं। देश के विभिन्न कोनों में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में कई लोग नियमित रूप से प्रशिक्षण लेते हैं। आपने आज अपना समय दिया और आप इनसे बातचीत कर इन्हें प्रोत्साहित करना चाहेंगी, इसके लिए मैं फिर आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपनी और अपने खिलाड़ियों की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि ये देश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे, झंडे को ऊंचा रखेंगे। धन्यवाद मैम, जय हिंद। Now I would request Shri Tejaswin Shankar, Athletics, to come on the stage and share his views. नमस्कार मैम, मैं तेजस्विन शंकर और मेरा सबसे बड़ा लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, मैं इतने साल से 10 साल हो गए मुझे खेलते हुए और आज तक इससे बड़ा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में रहा नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो 2015 में एक छोटा सा देश है समोआ के नाम से, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तट पे आता है। मुझे उसके बारे में नहीं पता था, तो हमें वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन खेलने के लिए भेजा गया था। हमने भारत का प्रतिनिधित्व किया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया, एक छोटी सी बच्ची आई और भाग के आके उसने मुझे ऐसे हक किया और वो 4 साल की थी शायद। हक तो खैर क्या, मतलब इतनी सी थी तो मेरे घुटनों को उसने हक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उसके शायद पेरेंट्स थे और ना उनकी भाषा मुझे समझ आई, ना उनको मेरी भाषा समझ आई। और
उनने मुझे ऐसे थम्स अप किया, तो वो एक्सपीरियंस शायद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है। आज तक मैंने शायद जो भी पदक जीते उन सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए यही रहा है। और उस दिन शायद मैंने ये सीखा कि स्पोर्ट्स किसी भी लैंग्वेज बैरियर इन सब चीज़ों से बड़ा होता है, और वो एक्सपीरियंस मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। श्री प्रमोद भगत। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तब इतना स्पोर्ट्स का इतना क्रेज़ नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, और ओनली क्रिकेट का इतना क्रेज़ था जब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। उसके बाद जब पैरा गेम्स थे तो उसके लिए और भी क्रेज़ नहीं था। तो एक एक्सपीरियंस है कि मैं जब स्टार्ट कर रहा था तब जितने भी हडल्स आए थे, और आज देखने के बाद जैसे मैम ने कहा कि आज पैरा एथलीट्स टॉप स्कीम में हैं, खेलो इंडिया स्कीम्स में हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें उनको तब अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैम आपके साथ अब हमारा इंटरेक्शन हो रहा है और हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी भी मिला हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा कि आगे जाके हमारे पैरा एथलीट को भी बहुत आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली हमने जो मैडम ने कहा कि हम देश के लिए मेडल लेंगे और लाएंगे, डेफिनेटली हम वो करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरा आई थिंक मैं 20 साल हो गया पैरा बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो होप देश ने हमें रखा है और जितने भी मैम्स और सर ने हम पे होप रखा है कि हम जाके कुछ अच्छा करेंगे, तो डेफिनेट 2004 में जाके हम अच्छा करेंगे। ये तो मेरा एज नॉर्मल एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू मैच। मिस शीतल देवी, पैरा आर्चरी। नमस्ते मैम, मेरा नाम शीतल है। मैंने आर्चरी 2022 में शुरू की थी। सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानती थी, तो मैं बेंगलोर गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए। वहाँ पे प्रीति दीदी मिली थी, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया था। तो फिर मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अकेडमी में आई थी। तो वहाँ पे सर थे कुलदीप वेदवान और मैम अभिलाषा चौधरी, जिन्होंने मुझे आर्चरी सिखाई थी। पहले मुझे मुश्किल लगता था कि मैं आर्चरी नहीं कर पाऊँगी, सभी अपने हाथों से करते थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने पैर से निशाना नहीं लगा पाऊँगी। फिर सर ने डिसाइड किया कि मैं कैसे कर पाऊँगी। जैसे जैसे मुझे सर ने बताया कैसे कैसे करना है, वैसे ही मैंने किया। मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ अपनी कोचेस की वजह से ही पहुँची हूँ। आज मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हूँ और अपनी कोचेस की वजह से ही बन चुकी हूँ। और मैं टॉप स्किल मैम ये भी टॉप्स की स्कीम में है, जो बहुत सपोर्ट मिल रहा है आज खिलाड़ियों को। मिस आरती कस्तूरी राज, रोलर स्केटिंग। Namaste ma'am, I'm Dr. Aarti Kasturi Raj. I've been skating for the past 22 years. I'm from Chennai and I'm a speed skater. A lot of people didn't know about the sport, and at this Asian Games we won the first bronze medal for the country. And in my 22 years of skating, I've always tried managing academics and sports because my parents always believed that I should manage both. One of the best experiences for me was on the podium at Asian Games when they were announcing our names. They mentioned that I was a doctor and I'm an infertility specialist, and that an athlete can also do education. So that was one experience that will always be close to my heart, because I feel in our country, we're always capable of doing both academics and the sport. So this is one experience that will always be close to my heart. Thank you. मिस मनु भाकर, शूटिंग। नमस्ते मैम, मेरा नाम मनु भाकर है। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव गोरिया से। और जब मैं 7th क्लास में थी तो मैं मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट करती थी। और उस टाइम पे एक दिन मेरे कोच ने मुझे बोला कि हम आज के बाद लड़कियों को ट्रेनिंग देना बंद कर रहे हैं, सिर्फ लड़कों को ही ट्रेनिंग देंगे। तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था कि मुझे स्पोर्ट छोड़ना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियों को नहीं खिलाएंगे। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई धीरे धीरे शूटिंग में, और शूटिंग में मैंने मेडल जीता 16 साल की उम्र में, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल। और उसके बाद से ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी अकेडमीज़ खुली जो विमेन और मेन दोनों के लिए, लड़के लड़कियों दोनों के लिए बड़ी अकेडमीज़ बनी है, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, शूटिंग सब में। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो भी स्पोर्ट उनको खेलना है वो उनको खेलने का मौका मिल रहा है। और मैम मैं अभी एशियन गेम्स में टीम गोल्ड जीता था, और लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें मेरा 7th पोजीशन था। और अभी मैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हूँ,
और आगे आने वाले समय में हम ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ टॉप स्कीम का और खेलो इंडिया गेम्स का, बिकॉज़ 2018 में उसी समय में खेलो इंडिया गेम्स से उभर कर ऊपर आई थी और अभी टॉप स्कीम के अंडर ही मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है और बहुत तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। मिस अदिति गोपीचंद आर्चरी। नमस्ते मैम, मेरा नाम अदिति गोपीचंद सानी है और मैं पिछले 8 सालों से आर्चरी गेम कर रही हूँ। मैं इस साल का अपना एक बहुत कीमती एक्सपीरियंस आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं इस साल पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप गई थी। मेरे लिए बहुत बड़ी कंपटीशन थी क्योंकि मेरा ये डेब्यू सीज़न था। तो जब मैं गई तब मैंने फर्स्ट दिन देखा तो मेरे सारे जो आइडल्स थे और सारे सीनियर प्लेयर्स थे तो वो सब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पहले दिन लगा कि मैं इनके सामने टिक नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं अभी मेरा डेब्यू सीज़न है और मतलब इनको देख के मैंने आर्चरी सीखी है तो मतलब ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जब मैं गोल्ड फाइनल में थी और जब मैंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए और तब मैं यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैम्पियन बनी आर्चरी में। और तब जब 52 सेकंड्स का राष्ट्रगान बजा और अपना जो तिरंगा है वो आसमान में लहराता दिखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एज नहीं मैटर करती। अगर आप में गट्स है और आप इतने टैलेंटेड है, आपने हार्डवर्क किया है तो आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू मैम। खिलाड़ी भेंट स्वरूप कुछ मोमेंटोज लेके आए हैं, अगर आप परमिशन दें तो। Sportsmen and sportswomen of India. I am happy to interact with you all today. You have brought glory to the nation through your exemplary performances at the international stage. Your dedication, passion, and unwavering commitment to excellence have not only showcased your individual prowess, but have collectively elevated the name of India in the world of sports. Recently, at the Asian Games and Para-Asian Games, your extraordinary efforts resulted in a staggering 107 and 107 and 111 medals respectively. These remarkable achievements not only speaks volumes about your talent, but also exemplifies your indomitable spirit. Moreover, at the World University Games, our medal tally surpassed our total medal tally of all previous editions. I would also like to appreciate the incredible performance of our sportspersons at the Para Games over the last few years. Your success has not only shattered stereotypes, but has also paved the way for a more inclusive and diverse future in sports. Your journey is not just about personal victories, it is about giving wings to the dreams of all Indians. Always remember that you are not just athletes, you are ambassadors of our culture, values, and the spirit of a billion people. In a few months, the world will turn its attention to the Paris Olympics and Paralympics in 2024, and our eyes will be fixed on you. We count on your skill, dedication, and sportsmanship
to bring joy and pride to our nation. In the end, I once again compliment each one of you for your contributions in the field of sports. Your achievements are not just victories on the field, they are milestones in the journey of our collective pride. I believe in each one of you, and I am confident that together we will continue to script history and make India proud. May the spirit of sportsmanship guide you in every endeavor. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.